Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about Aries Ascendant and how the month of July 22 is going to pan out for the Aries Ascendant people. Now Aries is one of the best ascendant one can hope to be born into because Ascendant Lord Mars provides people with abundant energy in their lives and ability to get things done quickly. It is one of the four ascendants along with Cancer, Scorpio, and the last phase of Capricorn that make people go places. Now, coming to the month of July, combination of Mars and Rahu is formulating in the first house. Ascendant Lord is Mars and is passing through the first house, but the problem is its conjunction with Rahu. Rahu is an illusion and is also a significator for expansion in the lives of people, and Mars is aggression. Therefore, people with Aries ascendant will need to control their anger as well as their energy. They may end up spending their energy and time in pursuing an agenda which may not give them any concrete output, and in the process, they may end up alienating a lot of people. Aries ascendant people rise a lot in their life because of their ability to get things done from others in an aggressive manner because Saturn's practical sign Capricorn falls in the 10th house of karma or the workplace. These Aries ascendant people are born leaders, but month of July is not the right time to pursue these hot-headed tactics because it will backfire on them and they should refrain from taking any aggressive approach in the month of July. So Mars have entered in the first house for Aries ascendant on 27th of June and it is going to stay here till 9th of August. Now since Mars also owns the 8th house, what will happen is that the 8th house lord energies will also get pulled into the first house. So these negative energies will further contribute to a increase in the problem, and Jupiter also passing through the 12th house would mean that the expenditure will also increase. Now let us talk about some other attributes. The fifth house is a house for stock market, and the fifth house lord sun is passing through the 11th house, which is usually considered a very good combination. Third house also indicates courage, and that is something which is needed if you are investing in the speculative business. The problem here is that Saturn is aspecting the fifth house through its seventh aspect, and this aspect is spoiling any gains that the person can generate from the speculative business. So Aries ascendant people who want to invest in the speculative business should stay away from it in the month of July. Otherwise, chances are that they will end up hurting their portfolio. Similarly, fifth house also indicates education, and students will have to work very, very hard. Ketu is in the seventh house at the moment and is not getting any aspect from Jupiter. So, people who are planning to get married will have to wait in the month of July because there is as such no probability of them getting hitched at this point of time. So I'll also provide some date wise forecast for the month of July. Beginning of month, the 2nd to 6th of July is the best time for earning money because Venus is in the second house, and this also indicates that people will be able to spend quality time with their family members. There could be some function at home or an occasion where a lot of family members gather together. So 2nd to 6th of July is a good time, not only family wise, but also from the angle of earning wealth. 7th to 10th July is the time which is spent well with your siblings. Sun is present in the third house at the moment, and as a result, you will see some kind of an ego clashes with your siblings. So just be very careful because Mars again is in your first house, and your siblings having a high ego would mean a clash with them. So just avoid any kind of a fight with your siblings. 11th to 15th of July is the best time to spend with your family and with your mother. Jupiter is also aspecting the fourth house through its fifth aspect. Therefore, if you're planning to buy a property, then this would turn out to be a good time frame for you. But one caveat here, if you are going for purchasing a property, just make sure that you have gone through all the documents and legal formalities in a rigorous manner because Mars is also a significator of lands and properties, and its current conjunction with Rahu would mean that there could be some kind of a
problem if you are not very rigorous in completing the formalities. So 16th and 20th of July is again a good time to spend with your kids or to pursue any creative activity, because moon will pass through this house at that point of time. Any kind of a creative work that tickles your imagination, or people who do creative kind of a work, artists, craftsmen, painters, writers, even product innovation or product managers, they will see a pretty good time in 16th to 20th of July. 21st to 25th of July is a time when one needs to watch out for their health. This Mars Rahu combination with 8th Lord in the first house also is a problem from the health perspective. But the 5 days time from 21st to 25th of July is a time where they need to be very careful, because they may end up getting some kind of a problem that is indicated by Mars, problem related to blood, muscles, or even fever. Those cannot be ruled out. 26th to 30th of July is a very favorable time for people who have their own business. They'll see some kind of a good opportunity to shine in the business, or they may get a chance which moves them to the upper stratas of the society. People in jobs also have a good time in the last week of July. So overall, how this month will go will depend on how you are able to channel this energy of Mars plus Rahu. If you are able to channel it in the right direction, if you can manage to control your anger, then things can work out well for you. Otherwise, it will become a troublesome month for Aries ascendant people. So if you have liked this video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं मेष लग्न के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, जो मेष लग्न के लोग होते हैं, इनका लग्न स्वामी मंगल होता है। ये मंगल लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने कई मेष लग्न की कुंडलियां देखी हैं, और मेष लग्न के लोग हमेशा ही ऊर्जा से भरे रहते हैं, हमेशा नई नई चीजें करना चाहते हैं, और जिसे हम एक इनिशिएटिव लेना कहते हैं, वो मेष लग्न वाले लोग हमेशा ही दिखाई देते हैं वैसा इनिशिएटिव लेते हुए। मेष का अगर मंगल आपके प्रथम भाव में बैठा होता है, तो यह व्यक्ति को बहुत अहंकारी भी बनाता है, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। कुछ ऐसी स्थिति जुलाई में भी बन रही है, क्योंकि मेष स्वयं ही प्रथम भाव से गुजर रहा है और राहु के साथ युति कर रहा है। ये जो राहु के साथ युति है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जितने भी लग्न हैं उन सब के लिए ये युति किसी ना किसी भाव में तो बनेगी ही, लेकिन ये मेष लग्न वालों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि ये लग्न स्थान पर ही बन रही है, जो कि व्यक्ति का स्वयं का स्थान होता है, उसकी सोच और उसकी पर्सनालिटी को दिखाता है। मंगल ऊर्जा और गुस्से का कारक होता है, और राहु जो है वो इल्यूजन्स और एक्सपेंशन का कारक होता है। मृग तृष्णा दिखाना जिसको कहते हैं, वो राहु का काम है, या लोगों को भटका देना, उनकी सोच को टेढ़ा मेढ़ा कर देना, ये भी राहु का ही कार्य है। तो यहाँ पे इन लोगों के साथ दिक्कत होगी कि राहु उनके गुस्से को कई हद तक बढ़ाने का काम करेगा। मंगल तो स्वयं ही अग्रेशन का ग्रह होता है, तो जितने भी लोग जुलाई के महीने में अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी इस ऊर्जा को किसी सही दिशा में गाइड कर सकते हैं, उनके लिए तो ये महीना अच्छा रहेगा। क्योंकि होगा ये कि अगर वो राहु के जाल में फंस गए, तो वो कोई ऐसा एजेंडा के पीछे लग जाएंगे, कोई ऐसा कार्य करने में लग जाएंगे जिसमें उनको कोई आउटपुट मिलेगा नहीं आखिरी में जाके, और उल्टे पूरे एक पूरी चेन से या सारे लोगों से वो झगड़ बैठेंगे। इसलिए मेष लग्न वालों को जुलाई के महीने में अपने गुस्से पे कंट्रोल रख पाना बहुत जरूरी है। मेष लग्न के लोग जीवन में बहुत ऊंचे उठते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक वो कला होती है कि दूसरों से हम काम कैसे करवा लें और जल्दी कैसे करवा लें। अगर आप कर्म स्थान देखेंगे, तो यहाँ पे शनि की राशि पड़ती है, पृथ्वी राशि, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल राशि कहलाती है, मकर राशि। तो इन लोगों में ये क्वालिटी होती है कि दूसरों से काम करवा लेते हैं, और कई बार झगड़ा करके, गालियां देके वैसे भी काम करा लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के टैक्टिक्स जुलाई में परसू करोगे, तो वो आपके ऊपर उल्टे भारी पड़ेंगे। इसलिए किसी से झगड़िए मत जुलाई के महीने में। जितनी शांति हो सकती है उतनी बना के रखिए, नहीं तो आपका गुस्सा इस बार आपके कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। मंगल यहाँ पे 27 जून को घुसा है, और वो 9 अगस्त तक यहीं बैठा हुआ रहेगा। मंगल 8वें भाव का भी ओनर है, तो 8वें भाव की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है, वो भी वो अपने साथ प्रथम भाव में खींच के लेके आएगा। और यहाँ पर गुरु भी 12वें भाव से गुजरेगा, तो व्यक्ति के खर्चे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस समय में। अभी कुछ और भावों की भी स्थिति देखते हैं। स्टॉक मार्केट आप 5वें भाव से देखते हैं, और
पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव से गुजर रहा है जो कि 5वें से 11वां पड़ता है। तो आमतौर पर आप कह सकते हैं कि ये समय शेयर बाजार के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि शनि अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है 5वें भाव पे, जिसकी वजह से शेयर बाजार की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। और इन लोगों को अगर पंचम भाव से कोई प्रोफेशन भी करते हैं तो उसमें भी जुलाई के महीने में दिक्कत होगी, क्योंकि जितनी भी 5वें भाव की चीजें हैं ये शनि का एस्पेक्ट इनको निगेट कर देगा, तो शेयर बाजार से कुछ फायदा नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप कोई क्राफ्ट और ये सब का भी काम करते हैं तो उसमें भी मेहनत बहुत लगेगी करने में। स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 5वें भाव से विद्या भी देखी जाती है। तो इन सारे लोगों के लिए जुलाई का महीना थोड़ा सा टफ साबित होगा। केतु यहाँ पर सप्तम भाव से गुजर रहा है, लेकिन इस पे गुरु की कहीं से भी दृष्टि नहीं पड़ती। अगर पड़ रही होती तो हम कह सकते थे कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनका कुछ चांस था जुलाई के महीने में, लेकिन जो भी सिंगल लोग हैं उनको और वेट करना पड़ेगा। जुलाई के महीने में तो कोई मौका मिलेगा नहीं। अभी अगर हम कुछ डेट वाइज देखें कि किस तरह से चीज़ें बन सकती हैं, तो 2 से 6 जुलाई का समय है, ये सबसे अच्छा समय है अपने परिवार वालों के साथ बिताने में, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है, गुजर रहा है यहाँ से। इस समय में ऐसा भी मिलेगा आपको और घर वालों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। कई बार हम ये देखते हैं कि आप किसी सोसाइटी के इवेंट में मिल जाते हैं या कहीं पर कोई परिवार में फंक्शन होता है तो सारे रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, उस तरह का भी कुछ सिनारियो हो सकता है। तो परिवार के साथ मिलना और पैसा भी उनके थ्रू अर्न करना, ये आपको 2 से 6 जुलाई में अच्छा साबित होते हुए दिखेगा। 7 से 10 जुलाई का समय आप अपने सिबलिंग्स के साथ बिता सकते हैं, भाई बहनों के साथ। अब तृतीय भाव से सूर्य जा रहे हैं, तो सूर्य जहां भी जाता है उस भाव से रिलेटेड इंडिविजुअल की ईगो बढ़ाता है। तो तीसरे भाव से आपके छोटे भाई बहन देखे जा सकते हैं, तो उनके ईगो में बड़ा चेंज आएगा, उनकी ईगो बढ़ेगी। आपके प्रथम भाव से मंगल जा रहे हैं तो आप भी अग्रेसिव रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आप उनसे लड़ने भिड़ने में जुड़ जाएं। तो ये समय आप अवॉइड कीजिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आपके भाई बहनों के साथ भी आप लड़ पड़ सकते हैं। 11 से 15 जुलाई का समय होगा, आप अपने परिवार के साथ बिताइए, अपनी मदर के साथ स्पेंड कीजिए। गुरु यहाँ पे अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा समय रहेगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं उसमें जमीन जायदाद का कारक होता है वो मंगल है। मंगल यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु का जुड़ना यानी किसी तरह की फ्रॉड फोर्जरी होने की भी संभावना रहती है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो गुरु का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है 5वें भाव 5वीं दृष्टि से, लेकिन सारे कागजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, नहीं तो किसी तरह का अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई तो किसी तरह का फ्रॉड फोर्जरी होने की भी संभावना रहती है। 16 से 20 जुलाई का जो समय है वो आप अपने बच्चों के साथ बिताइए, और अगर कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं जैसे आर्टिस्ट हो गए, पेंटर्स हो गए, तो उनके लिए 16 से 20 जुलाई का समय अच्छा रहेगा। 21 से 25 जुलाई का समय है, ये आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय के दौरान आपको कोई खून से रिलेटेड समस्या हो सकती है, ये मंगल राहु का ही कॉम्बिनेशन समस्या क्रिएट करेगा लग्न स्थान में, या फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बुखार उखार आने की संभावना रह सकती है इस समय में। महीने का जो आखिर है 26 से 30 जुलाई, ये काम धंधे के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आपका चाहे बिजनेस है चाहे नौकरी है, ये समय आपका अच्छा बीतेगा। जो जितने भी लोग बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको कुछ बहुत अच्छा और बढ़िया मौका मिल सकता है जिसकी वजह से उनका बिजनेस आगे जाके ग्रो कर सके। लास्ट वीक में देखिएगा कुछ मौका बनता है कि नहीं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो देखिए ये आपका समरी है। कुल मिला के अगर आप देखिए तो ये महीना पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो मंगल राहु का युति बन रहा है, तो आपको जो एक बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही है उसको आप कहाँ पर स्पेंड करते हैं, कहाँ यूटिलाइज करते हैं। आपको ये ऊर्जा सही दिशा में डायरेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस एनर्जी को कोई काम करने में लगाते हैं, उसको पूरा करने में लगाते हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर आपकी गुस्सा जो आपकी कंट्रोल के बाहर निकल गया तो फिर ये महीना आपके लिए सरदर्दी पैदा करने वाला होगा। तो ये आपका कुल मिला के प्रिडिक्शन है जुलाई महीने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।